Hello. Hello. Are you guys there? Can you hear me? Yes, sir. Okay. All right, people, come on video. Everybody, come on video. Actually, मैं काम करता हूँ. So, yeah. 5303. Else I will. Then I don't have to keep saying it. There's no formatting here. Cool. Oh, this is so much more effective. Everybody comes up and then they put on their video. Nice. Meanwhile, I'll download my book. क्या कर रहे थे हम? Linear equations. Okay. So, Hmm? so we will be doing the polynomials at last or first. क्या? We what? You said that we last class you said that we will do 50% half of the class polynomials and half of the class linear पढ़ा equations. दिया था ना. तो अभी मैं linear equation भी पढ़ा देता हूँ. फिर हम polynomial के questions भी कर लेंगे और linear equation के questions भी कर लेंगे. Okay, sir. Okay. Sir, हाँ. sir, yeah, from next week onwards, I'm going to Bangalore for a training, so for a swimming training camp, and my classes will be in the evening, so I maybe not be able to join the meeting. So I'll write a mail regarding it. So what time will your classes be? Sir, I think 4 to 6, maybe, I don't know. So For how long? I'll see the recording. 3 weeks. During Corona, they are doing swimming practice. Sir, it's a training camp for elite swimmers. Yeah, but they are doing it. Yes, sir. We'll be in a bio bubble, so You will be in a we what? don't meet anybody. In a bio bubble. We'll be in a bubble, so we won't meet anybody else. We'll just stay in the hostel and then go to swimming training and back and forth. Okay. Good luck. Thank you. Math करो. Grade 10 Math KM linear equation. Polynomials. Sir, can I switch on my camera in 2 minutes? I'll just get the... What I can't understand, your voice is. Huh? Can you switch on the? Sir, I'm just getting the book. Can I switch on my camera in 2 minutes? अच्छा, जो बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा तो जो करना वो कर लो तुम. Now this is like signing the blank check.
anyway. Equation. Awesome. Brilliant. This works well. Class is now ready. Everybody is there on video. I can talk to people. Who's Abir? Abir, कहाँ है तुम्हारा video? Okay. So बाकी लोग किधर? Okay. ठीक है. So अभी तक जो लाइट में पढ़ाया था सब समझ में आ गया. सबको कॉन्फिडेंस आया. कल प्रैक्टिस किया. So very soon we'll be starting our homework sessions where you'll have to submit it on the link. Also we'll be starting the championship, which means that जो भी तुम homework करोगे 2 हफ्ते तक, उसके बाद उसका टेस्ट होगा और वो सेम तरीके से होगा जिस तरह पिछले साल हुआ था. You will be in groups, you will help each other, and there will be group points, and at the end there will be champion. Also, we'll be launching Flipper maybe in a month's time. So Flipper app is ready. We're putting up content on it. Content is very, very, very. Okay, I'll show you. Tell me if you like it, and you can give me some suggestions also. I'll pause the. Done. चलो. अब ये बस इस टॉपिक में तो इतना ही था, है ना? और तो कुछ था नहीं. ये भी था एक्चुअली. तो अगर क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा दोनों दिया हुआ है, तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यू कैन रिक्रिएट द इक्वेशन बाय, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दैट इक्वेशन. अगर अल्फा सम ऑफ रूट्स दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दिस इज सम ऑफ रूट्स, है ना? तो इट विल बी k into x square minus sum of roots into x plus product of roots. Or we can use the second method. We can use the Second method. what is the second method? Sir, if we know that the 2 zeros of the polynomial are suppose minus b by a is 22 upon 1, so we can get that minus b is 22, so we get the second zero as 22 and a as 1. So this is what. वो लंबा हो गया ना फिर. उसके लिए तुमको Sir, 5 but I find it easier. हाँ, but you can find easier by not multiplying and counting 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is 10. But that's not what mathematics is. ना, mathematics is about how quickly can you get to an answer. इसलिए तो हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं भाई. हाँ. अच्छा एक बात बताओ. But sir, what Abhi said, this formula is a simplified version of it, Abhi, no? But it takes more steps. Just that. Yeah. And somebody asked me in the last class also, and I said a plus b square फिर नहीं याद करते तुम कहते नहीं a plus b into a plus b करके देखूंगा मैं, फिर तुमको 4 स्टेप लगेगा, right? If you remember a plus b square, then it's just going to be done in 1 step. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चालू की है तुम लोगों ने? You don't have it in your syllabus? Okay. So computer programming में it's very important that you should write the program in the least number of steps, so that the computer has to do least number of processing, least amount of processing. अगर सेम कोड तुमने बहुत लंबा लिखा हुआ है सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, so it's going to take that much of time ना. तो इसलिए तुमको धीरे धीरे करके मैथमेटिक्स इन लोग ऐसे ऐसे पढ़ाते जाते हैं. पहले a plus b into a करना सिखाया ग्रेड 6-7 में, फिर a plus b होल स्क्वायर को याद करना सिखा दिया ताकि तुम जो पहले 4 स्टेप में करते तो 1 स्टेप में हो जाए. अब ये करने के बाद जो तुम अब इससे पहले 4 स्टेप में करते तो 1 स्टेप में हो जाएगा, तभी तो जाके नेक्स्ट ग्रेड वाला काम कर पाओगे ना तुम. That's why use this k into x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Okay. और क्यूबिक के लिए ये ठीक है. डन. तो इतना ही था बस इस वाले चैप्टर में. ओके. नाउ आई विल स्टार्ट विद द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. उसके बाद हम दोनों के सवाल कर लेंगे. चलो.
Abhishek Trivedi, Yes, sir. come on video. Yes, sir. All right, चलो. A pair of linear equations in two variables का मतलब क्या हुआ? टू वेरिएबल्स मतलब एक वेरिएबल x हुआ, एक वेरिएबल y हो गया, है ना? तो दीज आर वेरिएबल. वेरिएबल मतलब इनका कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम कभी भी. ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? अनिर्बान भट्टा. Sir, can I say? नहीं, जिसको पूछा वो बताएगा ना. Sir, polynomial with degree 1. वेरी गुड. सो लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ डिग्री 1. इसका मतलब x के ऊपर एक ही डिग्री होगी, y के ऊपर एक ही डिग्री होगी. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा वाला इक्वेशन नहीं देखेंगे. ऐसा इक्वेशन देखेंगे जिसमें x और y बस वैसे ही हो, उसके टू द पावर और कुछ नहीं होगा. दैट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. इन टू वेरिएबल क्या हो गया? एक्स वाई वाला. अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो दो इक्वेशन चाहिए होंगे, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना? तो दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं जिनके दो वेरिएबल है, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे. अब इसमें टेक्निक हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि दो इक्वेशन आएगी तो उसको सॉल्व कैसे करना है. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन इस वाले चैप्टर में जो सवाल आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से. तो अच्छे से इक्वेशन बनाओगे, फिर उसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा. ठीक है, चलो. तो दो इक्वेशन कौन कौन से हो गए यहाँ पे? 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7. लीनियर है ये, क्योंकि दोनों की डिग्री 1 1 है सब, और दो इक्वेशन अलग अलग मिली, है ना? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये दो इक्वेशन है कि एक ही इक्वेशन है? एक ही one. एक बार फिर बोल रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 10. One equation. Same equation. क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया 4x प्लस 2y इक्वल टू 10. तो वो इक्वेशन सेम ही होगा, क्योंकि हम 2 इक्वल्स 2 कॉमन निकाल के हटा देंगे उसको, तो फिर यही इक्वेशन बन जाएगी. इसका मतलब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है. दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना जरूरी है. ठीक है. तो जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई इज दिस: a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म है, लिख लो इसको, ये जनरल फॉर्म है. ठीक है. डन. Yes. अब लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ आइडिया है? Sir, it would be a straight line. करेक्ट, इट बी Straight line. स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो इसका मतलब दो इक्वेशन है तो दोनों की अलग अलग स्ट्रेट लाइन होगी. और वो स्ट्रेट लाइन हमको क्या दिखाता है? वो हमको दिखाता है कि कितने पॉइंट्स में वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट पुट ऑन माय Cintiq. Okay.
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशंस है सपोज, है ना, यहाँ पे बना देते हैं। तो एक और yes, या इसी में ही बना देते हैं। ये ग्राफ है ना, तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक है ऐसा और एक है ऐसा, तो दोनों की अलग अलग लाइन बनेगी। अब ये जो लाइन दिखा रही है इसका मतलब है ये इस पॉइंट, ये पॉइंट एक्स वाई का कोई पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स वाई का कोई पॉइंट है ना, तो ये सारे एक्स वाई के पॉइंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सेटिस्फाई होते हैं, और इस वाले एक्स वाई के पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई होते हैं, और ये वाली जो एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होते हैं, है ना। तो जब तुम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको ये वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस वाली लाइन में भी लाई करता है, इस वाली लाइन में भी लाई करता है, इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में भी सेटिस्फाई होगा, इस वाले इक्वेशन में भी सेटिस्फाई होगा। यू गेट इट? तो अगर ऐसा सिनारियो है तो इट बी कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशन। दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे हैव अ कॉमन सोल्यूशन। ये जो येलो है वो कॉमन सोल्यूशन हुआ, राइट? ओके। डिपेंडेंट इक्वेशन, द इक्वेशन विच हैव मोर देन वन इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? एनी आइडिया? कि ये लाल वाली लाइन है, ये लाल, हाँ, दे कोइंसाइड, ये भी इक्वेशन और इसी के ऊपर एक और इक्वेशन भी चल रही है, उसमें हर लाइन जो, हर पॉइंट जो है एक दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है। तो जैसे मैंने यहां बोला था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, अगर दोनों की लाइन हम बनाएंगे तो ये दोनों ऐसी लाइन बनेगी ना। सो दोज आर डिपेंडेंट इक्वेशंस, क्योंकि इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशंस, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सारे पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड डिपेंडेंट इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट मतलब दे आर अ मल्टीपल, a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 इज अ मल्टीपल ऑफ a2 b2 c2, है ना। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होगा? पढ़ो इसको, देखो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होगा? Sir, they don't meet any. They Parallel do है। not have a Don't. They common are parallel lines. एग्जैक्टली ये ऐसा चल रहा है, और एक ये है इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ये, मतलब पैरेलल है, तो ये कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो उस केस में ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? गेट इट गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes. ऑलराइट। तो अब इस केस में इसका वो देख लेते हैं हम कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, मतलब आई टोल्ड यू ना कि वो 2 से मल्टीप्लाई, सब 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, फिर सेम मल्टीपल नहीं है। तो ये लिख लो कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग समवेयर, दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद नोट कर लेना है, पूरा टेबल नोट कर लेना, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है इसका मतलब इंटरसेक्टिंग हो रही है, एक जगह पे कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर यूनिक, और कंपेयर करेंगे रेशियोज तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। डिपेंडेंट अगर है इसका मतलब वो पूरी कोइंसाइड हो रही है एक के ऊपर एक, है ना, infinitely many solutions। in this case it means a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। जो मैंने एग्जांपल दिया था उस केस में a1 by a2 is equal to b1 by b2 equals to c1 by c2 is equals to what? मैंने जो एग्जांपल दिया था, हाँ, is equals to 2 2x 2 था ना, 2x yeah. is equals to 2, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था सब कुछ, है ना, तो वहां पे is equals to 2 हो जाता। इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब पैरेलल लाइन से कभी कोइंसाइड नहीं करेगी, इसका मतलब a1 by a2 is equals to b1 by b2। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y दे आर एट द सेम मल्टीपल, बट जो c है वो सेम मल्टीपल पे नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। इसको नोट कर लो और एक बार अपने ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ।
So can you explain the comparing the ratios for the last one again? Which one? This The last inconsistent. one, inconsistent. Yeah. Yeah. So it means that the coefficient of x and coefficient of y are in the same ratio. तो इससे हमको पता चलता है कि वो जो लाइन की स्लोप है वो सेम है, दोनों लाइन की स्लोप सेम है, बट जो c है वो अलग है. ठीक है, तो इस केस में, ऊपर वाले केस में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो अगर हम इसके लिए इनकंसिस्टेंट बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट्स टेक अ मल्टीप्लायर ऑफ 2, तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 10 होना चाहिए था बट हम उसको 11 कर देते हैं. चलो 10 को छोड़ के कुछ भी कर देंगे तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. यू गेट इट? तो c1 by c2 इज नॉट सेम एज a1 by a2 एंड b1 by b2, बट a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2. ठीक है, नोट कर लो. When you're done, let me know. Huh? Done? Yes. Yes, sir. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स हैं हमारे पास: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि पहले एक इक्वेशन में x को निकाल लो, x इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ y, फिर वो x इक्वल टू व्हाट को तुम दूसरे इक्वेशन में डाल दो, तो x फिर नहीं बचेगा उस वाली इक्वेशन में, क्योंकि x इक्वल टू y के टर्म्स में डाल दिया तुमने, तो फिर लीनियर इक्वेशन में नॉन वेरिएबल बन जाएगा. तो इसको सॉल्व कर लो, वो एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका एलिमिनेशन, कि जो x वाले दोनों टर्म्स है उसको एलिमिनेट कर दो. वो कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग बोथ द कोएफिशिएंट्स इक्वल. बताएंगे अभी कैसे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो एक तरीका है, वो भी अभी मैं बताता हूँ. चलो, सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू दिस. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. तो ग्राफ बनाना आता है क्या? आता है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है ना, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 ले लो फॉर एग्जांपल, तो उससे y कहाँ पे आएगा वो निकाल लो, फिर उस पॉइंट को मार्क कर दो. फिर x इक्वल टू 1 लिख के y का क्या आएगा. तो एक काम करते हैं, चलो बेसिक से लेते हैं, जस्ट सो दैट आई नो दैट यू गाइज नो.
x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू क्या होगा? y इक्वल्स टू 0 है तो 18 x by इक्वल्स 7. टू क्या होगा? और ठीक है, निकालो। और x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू क्या होगा? बताओ। Sir, can I answer? चैट पे Good. A lot of people are responding. Come, everybody respond. जितने लोग वीडियो पे नहीं है, वीडियो पे आ जाओ. Otherwise, I'll have to remove you from the class. जितने लोग वीडियो पे नहीं हो, वीडियो पे आ जाओ. ठीक है, सिंपल है ना. तो x इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो 7y इक्वल्स टू 18, तो y इज इक्वल्स टू 18/7. 18/7. y इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. तो x विल बी इक्वल्स टू 18/4, है ना? 9/2. 9/2. x इक्वल्स टू 1 है तो ये 4 हो जाएगा. तो 7y इक्वल्स टू 14, तो y इक्वल्स टू 2. तो हमको ये 3 पॉइंट्स मिल गए. पहला पॉइंट है 0, 18/7. दूसरा पॉइंट है 9/2, 0. और तीसरा पॉइंट है 1, 2, है ना? Actually, it's better to find points which are this thing, whole numbers, so that it's easier to mark on the graph paper. उसके बाद वो ग्राफ पेपर में 3 पॉइंट मार्क करके सीधा ऐसे लाइन खींच देना ऐसे, तो उसकी ग्राफ बन जाएगा उसका, है ना? सिंपल है. नाइत्री शाह, Abir, whoever is not on video, please come on video. Abhishek Trivedi, where are you? Amey Sonkhaskar, Ritvik Vishal. Yeah, then if you're not on video, then you just slow me down. Don't do that. So it can actually be a nice song. You slow me down. कोई यहाँ पे पोइट्री करता है क्या? तुम लोग पोइट्री करते हो? So who's that जिसने हाथ उठाया हुआ है? I can't see your name. Rishita. Rishita. Oh, okay. Okay. So Rishita, you do poetry. Yeah, like nothing serious, but like I write poetry. So do you rap also? We should do it. Then we should get together and make a song maybe. Let's make a song on something fun. There was a batch. I said something similar and then students wrote to me and then we finally came up with a rap battle between electron and proton. It was fun. वो 6-7 साल पुरानी बात है, but I remember it used to go something like, अरे बड़ा अच्छा सा rap है. I'll send you guys the video. And we gave the music on it and we recorded the guy. Also, it was very nice. Green screen वगैरह लगा के हमने किया था उसको. We should do it. 2 people are not on video. Amey Sonkhaskar and Abhishek Trivedi. What's happening with you people? Don't force me to force you. Today it's all poetic, man. How? It's fun. Those who are laughing are good. Those who are not laughing, tough crowd. All right. Amey Sonkhaskar and Abhishek Trivedi, last call. Either respond on chat or come on voice, or the best of all, come on video. Finally, Abhishek Trivedi is here. Hello, Abhishek. Hi, sir. तो क्या हो गया भाई, क्यों नहीं लगाते वीडियो? Yes, sir. इतनी टेंशन में क्यों यार? What happened? No, sir, I was writing something. It looks like you were sleeping. No, you just woke up. नहीं?
What are you holding? Is that a mobile phone or a laptop? Mobile phone, sir. तो तुम्हारे पास स्टैंड नहीं है क्या मोबाइल के लिए? No, sir. उसको ऐसे किसी टेबल पे रख दो ना. You don't have to keep holding it. Yes, sir. Okay, Amay Sonkaskar, the odd man out. Last call. Are you even there? Amay Sonkaskar, if I don't get a response in 5, 3, 5, 4. अभी आया उसका यस सर. तो किधर हो भाई? क्या हुआ? आई नीड यू ऑन वीडियो. Five seconds. Either call me right now on phone, come on audio, or come on video. You call me on phone, I'll have to talk to your parents, ask them why is he not on video, because ये आज का नहीं है, वो हमेशा से ऐसे ही चल रहा है. Or come on video right now, or at least come on audio, say something so that I know you're there. Yes, I'm there. You keep on audio. Next time I should not have to ask your name twice. If I ask you a question, give me a response. Figure out your video issue, come on video, but that I can let go of, but keep your video always, keep your audio always on. तो अभी ग्राफ हमने देख लिया, समझ में आ गया तुमको ग्राफ कैसे बनाना है. हालांकि ये तुमने 9th क्लास में भी किया था आई थिंक, है ना. सो अभी ग्राफ ऐसे Yes, बनाओ. yes, sir. दूसरे का ग्राफ ऐसे बनाओगे तो जहां पे भी मिलेगा वो तुम्हारा सोल्यूशन होगा, है ना. ओके, डन. ग्राफ से कैसा होता है वो तुमको समझ में आ गया. ग्राफिकल सोल्यूशन, इसको हटाओ. ओके, done. So this is how you draw the graph. Of course, do it on graph paper so that you're comfortable doing it during the exam. अब substitution method क्या होता है तो ये भी क्विकली मैं तुम्हें बता देता हूँ. substitution method क्या होता है. तो ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है. तो as I told you कि पहले x को निकाल लो. x equals to what? तो 7x equals to क्या हो जाएगा? 2 plus 15y, क्योंकि ये 15y इधर जाएगा, है ना. 7x equals to ये, तो x equals to 2 plus 15y by 7. ये हमको पता चल गया. अब इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देते हैं. तो फिर क्या होगा? x हट जाएगा, सिर्फ y के टर्म्स में आ जाएगा. सिर्फ y के टर्म्स में आ जाएगा तो लीनियर इक्वेशन है, नॉन वेरिएबल हो जाएगा. तो इसको आप लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 plus 15y by 7, क्योंकि x की वैल्यू ये, प्लस 2y equals to 3. अब इसको सॉल्व कर लो. तो इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 plus 15y plus 7 to the 14y, है ना, equals to 3. 7 Sir, you wrote 15y. क्या? Expect a 14. Expect a 14. You wrote 15y. You said it. Ritvik Vishal said it. Brilliant, Ritvik Vishal. Very good. It tells me that you are the guy who's following it. बाकी लोगों ने गलती देखी भी नहीं. तो यार गलती देखो, थोड़ा इम्प्रेस करो मेरे को. गलती देखो, गलती बताओ. तो ये 7 3 21 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस कितना हो गया? 14 प्लस 15 29. 29. 29 equals to 7 3 21, है ना. तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 उधर जाएगा तो 29y equals to 90. 19. So y is equals to 19 by 29. ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई. अब ये y की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना. ये x यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे डालोगे. तो दिस इज व्हाट मेथड? दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, Substituting method. okay. I'm giving you a question, do it with substitution. Okay. 8x plus y is equals to 14 and 6x plus 3y is equals to 7. Do it. क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे? The x in terms of y. तो y को सब्स्टिट्यूट करो ना, क्योंकि आसानी से निकल जाएगा. y इक्वल टू 14 माइनस 8x, फिर यहाँ पे डाल देना y, है ना. चलो,
So what we have to tell, x and y values only, yeah? Yes, the value. चैट पे भेज दो और Naitrisha gave an answer, Puneet gave an answer, both are different answers. So sorry, I think my answer is wrong. Actually, I took the second equation as the one in the question one, so Okay, I'll resolve it. okay. Correct, lot of you are giving correct answer. ठीक है, x equals to 35 by 18 आया. अब जिसको नहीं बना वो इधर देख लो कैसे किया हमने. हम कूल काफी लोगों का आ गया आंसर. आगे बढ़ते हैं. डन 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 पीपल. ऑल राइट. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब मुझे बताओ, मैं तुमको कुछ इक्वेशंस दूंगा और तुम मुझे बताओ वो कंसिस्टेंट होंगे कि डिपेंडेंट होंगे कि क्या था तीसरा वाला क्या था. Inconsistent. Inconsistent. ठीक है. Inconsistent. होंगे कि डिपेंडेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, ये तुम्हें मुझे बताना है. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम इक्वेशंस, यू टेल मी. So 2x plus 4y equals to 7 and ये क्या होगा? Consistency. Consistent. Consistent. Inconsistent. Sir, it's independent. Inconsistent. Because 7 by 21. Jasmine, tell me what. I think it's consistent. Why? What is the situation? Sir, I think it's multiplied by 4, the whole equation. But it is, this one is not multiplied by 4 ना. Oh, 7 no, for the 20. inconsistent. तो अगर ये देखो इसका सिंपल सा ट्रिक है, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. a1 by a2 क्या है? 1 by 4. यहाँ भी 1 by 4, बट ये 1 by 4 नहीं है. इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल हैं,
बट ये नहीं है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। अगर ये 28 होता तो ये 1/4 होता, इसका मतलब ये क्या होता? डिपेंडेंट होता ना, सेम इक्वेशन बन जाती ना, फिर डिपेंडेंट होता, ठीक है। और अगर ये 4 16 की जगह ये 12 होता तो फिर ये कंसिस्टेंट होता है ना। तो सिंपल ये बात है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसमें A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 है, बट इट्स नॉट इक्वल टू C1 by C2 है, तो फिर क्या होगा? Inconsistent. इनकंसिस्टेंट होगा। और इक्वल टू C1 by C2 फिर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, है ना। Get it? And if this is Yes. not equal, और ये कुछ consistent. आपको फर्क नहीं पड़ता, इक्वल हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसके बारे में जानना ही नहीं हमको, ठीक है। तो देन it is consistent. यहाँ this can be equal to also, this can be not equal to also, doesn't matter, but this should not be equal because this decides कि लाइन का कितनी स्टीप होगी लाइन। तो अगर ये इक्वल है मतलब सेम अमाउंट ऑफ स्टीपनेस होगी लाइन, ठीक है। चलो let's go ahead, cross multiplication method, ये तो हमने किया ना अभी, ये वाला एलिमिनेशन नहीं किया, ठीक है। तो एलिमिनेशन कैसे करते हैं भाई? इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 7x, ये लिखा है यहाँ पे 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, और ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो हम क्या एलिमिनेट करने के लिए इसको या तो इसको 7x बना लेंगे या इसको 15y बना लेंगे। तो क्या आसान है? 7x बनाना आसान है इसको, क्योंकि 7 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो इस पूरी की पूरी यही देखते रहो, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ क्या आएगा 7 से मल्टीप्लाई करने पे? 7x 7x plus 14y is equal to 21. सेम इक्वेशन ही हो गई है ना, हमको इन्होंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी सेम इक्वेशन ही रहेगी। और ऊपर वाला इक्वेशन भी लिख देते हैं, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब अगर मुझे इसको ये 7x को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन, अब ये ध्यान से देखना, एवरीबॉडी लुक हियर, इसको हमें ऐसे करना है। तो ये ऐसा लिखा रहेगा, तो तुम सबसे पहले माइनस का साइन ऐसे ब्रैकेट में डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कि ये क्या है। ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा। फिर एक लाइन ऐसे बनाओगे, ठीक है। अब 7x माइनस 7x 0, 14x प्लस 15x 29y है ना। 14 प्लस 15 है, माइनस नहीं, अब ये 15 प्लस हो गया, ठीक है। एंड 20 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 19, y इज इक्वल्स टू 19 by 29। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, ये हमेशा लोग साइन में गड़बड़ कर देते हैं। ये माइनस यहाँ ब्रैकेट में लिखो और उसके बाद सबका साइन चेंज करो, ठीक है। चलो, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन। So this is simultaneous equation, right? What do you mean by simultaneous equation? So this is how you solve a simultaneous equation. It's another type of a quadratic equation. What is simultaneous equation मतलब? Sorry, sir. What do you mean by simultaneous? Sir, when you solve two equations simultaneously by using the elimination. Oh, sorry. Okay, I went. So these are two equations, and we are learning how to solve it. So the first one we solved by substitution. substitution. We are solving by elimination. We are eliminating x altogether by दोनों का coefficient same करके उसको subtract करके तो eliminate कर रहे हैं. That's the second one. But simultaneous equation solving तो दो equation चाहिए ना हमको solve करने के लिए, क्योंकि दो variable है. All right, ठीक है, चलो, I'm giving you a question, solve that. 2x plus 5y is equals to 12, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं 3x, मेरा वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, 3x plus y equals to 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली की नीचे वाली? सर दोनों
Oh, तीनों को but क्यों we can take 5, multiply the second As number. we can multiply it by 5. हाँ सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, हो जाएगा. करो. ध्रुव शाह, थोड़ा गड़बड़ हो गया. Yes. Vasudha, first correct answer. That's good. Puneet gave the correct answer. Abhishek Trivedi, 50 by 30, 13. वो कौन सा है? y की वैल्यू है क्या? कर लो, सॉल्व कर लो, पूरी तरह कर लो. y की वैल्यू बताओ मुझे. x कितना है, y कितना है? या जैस्मिन गलत है. चेक. इधर देखो 38 by 13 आया ना. कैसे आया चेक कर लो. तुम्हारा क्या गलत है देख लो. Cool. Find y also. Everyone. x निकाला, y भी निकाल लो. y कैसे निकालोगे? सेकेंड इक्वेशन यूज करके निकालो, क्योंकि डायरेक्ट y है. y इक्वल्स टू 10 minus 3x.
Done? People, हो जाता तो बता दिया करो. Okay, now here is another Your thing. voice is cracking. My voice is cracking. Is it okay now? Check, check. So it's not correct. Not good. Hello. We can hear you. Not cracking. Not cracking. It's clear. I think it's their net issue. अच्छा, राघव अपना चेक कर लो भाई. Okay. All right. So here is next situation where ऐसा कोई दिखेगा ही नहीं तुमको कि तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इक्वल बना सको. फॉर एग्जांपल 3x + 4y = 10, ठीक है, और यहाँ पे 2x + 3y = 8. अब यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते. तो इसमें क्या करना, तुम एक कोई वेरिएबल पकड़ लेना. जैसे हम एक x को पकड़ रहे हैं, हम x को वी वांट टू मेक इट सेम. सो नाउ व्हाट वील डू इज, इस वाले को अगर हमको x न्यूट्रलाइज करना है दोनों इक्वेशन में, तो इस x के कोएफिशिएंट को इस वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2, राइट. So now this will give us two different equations, same equations but in different format. 2 × 3 = 6x + 2 × 4 = 8y. 8, 20. 20, 6x, 6, 9y, 9y, 24. right? 24. You go ahead and subtract it, तो minus 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 ये गया 8 - 9y - 1y = 20 - 4, तो ये -4 हो गया. तो y की वैल्यू हो गई 4, है ना. फिर x निकाल लेना. गॉट इट? ठीक है. Just for x, we will use the 3x plus 4y wala equation, the other equation which is 6x wala. नहीं, कोई भी यूज करो ना. हालांकि ऑफ कोर्स इनमें से यूज करो आसान पड़ेगा, बट कोई भी यूज करो, सारे इक्वेशन सेम ही है ना. बिकॉज दिस y = 4 will lie in every equation. That is the solution. In all these equations, whatever we written, y = 4 will lie in it. उसके बेसिस पे तुम x निकाल लेना. Okay. चलो. Now I'm giving you a question. 2x + 3y = 8. 5x + 4y = 12. करो. I'm looking at speed now. जल्दी जल्दी भेजो इधर. So I am getting the value of y and minus. What? What? Sir, I am getting the value of y and minus. तो क्या हो गया भाई, चलेगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो 2 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलो, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2. किसी को भी किससे भी करोगे सेम ही आंसर आएगा. ये y को पकड़ के एक दूसरे से करो या x को पकड़ के 2 5 से करो, सेम आएगा. 5 × 2 = 10. Let me put out.
All right. 10x plus 15y is equal to 5 8s are 40. 2 5s are 40. 10x, 10x. 2 4s are 8y. 8. बोलते जाओ 8y 48. 10 24 माइनस 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 ये गया 15 minus 8 बोलो 7y equals to 40 minus 24 हाँ 16. ओके तो y is equals to 16 by 7 ठीक है फिर x निकाल लेना ठीक है गॉट इट पीपल Yes, sir. इससे नहीं बना हाथ उड़ाओ इससे नहीं बना हाथ उड़ाओ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी समझना है समझ लो बाद में फिर सवाल नहीं बनेगा अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो ठीक है सो नाउ यू हैव डन सब एलिमिनेशन हमने अभी सीख लिया है ना उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस साल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं डिलीट किया ना तुम्हारे सिलेबस से So till now nothing is deleted. हाँ Sir, we haven't got the syllabus. सिलेबस ओके कोई बात नहीं। ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह करते हैं ठीक है सो ए बी सी की वैल्यू पहले इस तरह लिखना पड़ेगा तुमको इक्वेशन को तो ये ए हो गया A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 ये हो गया A2 B2 C2 ठीक है तो ऐसे आ जाएगा इस फॉर्म में लिख के उसके बाद इस तरह एक वो बना लो बी सी ए बी तो B1 C2 माइनस B2 C1 ठीक है इज इक्वल्स टू C1 A2 माइनस A2 C1 नहीं ये क्या है A1 C2 ऐसा है A1 C2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 ऐसा ठीक है थोड़ा गड़बड़ लिखा है इधर क्या है C1 A2 माइनस C2 A1 होना चाहिए ठीक है C2 A1 होगा तो मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे I'll just send the correct one on your WhatsApp so that you can replace it. ठीक है but you get it like this. Okay. Hello. can you go Yes, out? sir. Yes, sir. 5 होना चाहिए ये यहाँ पे भी थोड़ा गलत है 2 5 होगा ये 374 576 यहाँ पे फिर 46 3 74 2 यहाँ पे 5 2 3 3 तो ये 5 है यहाँ पे 5 होना चाहिए B2 क्या है इधर B2 5 है यहाँ तो ये 5 होगा ठीक है so basically this has to be C1 A2 minus C2 A1 ये C2 A1 होगा ये जो है ये वाला पार्ट C2 A1 होगा इसको करेक्ट कर लो अपनी बुक में ओके डन तो ऐसे लिखना है BCAB BCAB ये 1 1 1 ये 2 2 2 उसके बाद ये फॉर्मूला ऐसे आएगा x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस A2 C1 सॉरी C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 गेट इट ठीक है तो अब ये वाला सवाल सॉल्व करो these two तो पहले इसको करेक्ट फॉर्म में लिखो A B C वाले फॉर्म में तो ये उधर जाएगा उसके बाद सॉल्व करके देखो बन रहा है क्या तुमसे Sir, can you explain this method again? Yeah, just a second. Yeah. What did you ask? क्या Sir, पूछा? can you explain this method again? हाँ तो
ये इस फॉर्म में लिखना है तुमको, x अपॉन ब्ला इक्वल्स टू y अपॉन ब्ला इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ब्ला। तो इससे क्या होगा, ये कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली इधर लिख के ये आ जाएगा ना डायरेक्टली x की वैल्यू, है ना, एक बार में एक स्टेप में आ जाएगा। लेकिन अब ये याद कैसे करोगे इसको, नीचे वाला ये पार्ट, तो उसके लिए ट्रिक है, बी सी ए बी ऐसे लिख देना, नीचे भी B2 C2 A2 B2 लिख देना, उसके बाद ऐसे ऐसे एरो बना लेना, ऐसे ऐसे। तो अब तुमको एक तरीका मिल गया, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, 1 अपॉन A1 B2 A2 B1। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू विल बी B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। ट्राई करो, आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन के साथ ट्राई करो, देन वील डू इट आवरसेल्व्स। So after we get that in the fraction form, Yeah. then you equate it, ये 1 के साथ है ना तुम्हारा, तो x अपॉन ब्ला इक्वल्स टू 1 अपॉन ब्ला आ जाएगा फिर, लाइक दिस, x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, मतलब x इक्वल्स टू 8। डन हो गया। चलो एक और सवाल देता हूं, अब इस मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और मेथड एग्जाम में बोलेगा मेथड से करने के लिए, तो किसी और मेथड से करके कर दोगे तो एग्जाम वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी हमने किया ना, कौन सा किया था, 3x + 4y इक्वल्स टू 10
2x plus 3y equals to 12. निकालो इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. Got it? क्या आंसर आया? 18 minus 16. ओके, चलो ठीक है. एक और सवाल दे रहा हूँ, अब उसको किसी भी मेथड से कर लो, ठीक है? जो तुमको आसान लगे उस मेथड से कर लो सवाल सॉल्व. 3x plus 4y is equals to 10. 6x plus 8y is equals to 20. Solve. So these are the same equations, na? Exactly. इतना टाइम लगा बोलने के लिए. फिर तुम लोगों ने किया होगा, फिर सब कट कुट आके 0 0 हो गया होगा, है ना? सब 0 0 आया होगा. Then you must have thought अरे ये क्या होगा? पहले करने से पहले ही देख लेते यार कि ये a1 by a2 is equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, है ना? ठीक है. और अगर मैं इसको ये कर दूं तो अब सॉल्व करो. So there's still no variable one. Huh? Variable will not be there because x and y they are same only, na, still now.
Exactly. No फिर अभी solution. सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी ना. अभी मैंने इसको चेंज किया C1 C2, फिर भी A1 A2 B1 B2 सेम है. इसका मतलब A1 by A2 equals to B1 B2 is not equal to C1 by A2. मतलब there will not be any solution. If there is no solution तो सॉल्व क्या कर रहे हो फिर? बोल दो no solution. तो फिर करोगे फिर वही आएगा. X ऊपर कुछ और आ रहा होगा, नीचे कुछ और आ रहा होगा, and then you will be like, how is it possible both? Right? Both the scenarios will not be possible. Which means there will be parallel lines, there will not be any solution. Got it? Done, people? Yes. Right. So linear equation in two variable खत्म हो गया. अब ये क्या भाई? Equations reducible to a pair of linear equation. हाँ ये भी. तो देखो इस टाइप का कोई सवाल आएगा. 2 by x plus 3 by y equal to 13. 5 by x minus 4 by y equals to minus 2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई आइडिया? क्योंकि इसको ऐसे नीचे एलसीएम ले लोगे तो एक्स वाई बन जाएगा, उसको फिर एक्स वाई बन जाएगा, तो वैसा हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो उसका एक आसान तरीका है, इधर देखो, एवरीबॉडी लुक हियर, एवरीवन लुक हियर. उसका एक आसान तरीका है कि 1 by x को ले लो p और 1 by y को ले लो q. तो ये क्या बन जाएगा? 2p plus 3q is equal to 13 है ना, एंड 5p minus 4q is equals to minus 2. ऐसा बन जाएगा ना? Yes. 1 by x 1 by y 1 by x 1 by y है ना. You can substitute P and Q. यहाँ से p और q की वैल्यू आ जाएगी. जैसी p और q की वैल्यू आ जाएगी तुमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी. x will be 1 by p and y will be 1 by q. Get it? इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा. सॉल्व दिस. आदित्य मुंद्रा कैसे सॉल्व कर रहे हो बताओ. Sir, I'm solving with that P and Q method. p q की वैल्यू है क्या? Sir, I'm still solving. ओके. Done, sir.
PQ की वैल्यू आ जाएगी तो फिर XY की वैल्यू निकाल के बताओ. तो at the end you have to find XY. Don't give me PQ. Give me XY. Done, sir. All right. ऋत्विक विशाल बना. Sir, doing. सुधा गलत है. Check. Done. Vasudha checked. Yes, sir, got my mistake. Okay. Others still waiting. विशिता केडिया अच्छा उसने भेज दिया था. आदित्य मुंद्रा ने भेज दिया. Done, sir. Okay. ऋत्विक विशाल वेट कर रहा हूँ मैं. जैस्मिन आदित्य राणे ने भी भेज दिया. ओके. अनिर्बान भट्टा. Where was it? स्नेहल कश्यप PQ नहीं चाहिए, X और Y चाहिए. तो PQ अगर निकल गया तो उसको XY फिर बताओ मुझे. Sir, am I correct? Yes. Jasmine, what happened? I'm still solving.
You're still solving? Why? Why so long? Are you stuck somewhere? Nikki? Yes, You already gave the answer. Yeah, you gave the answer long. Okay. Oh, हाँ क्या हुआ? Yeah, no, your answer is correct. Yes, Vasudha, that's correct. जब तक बाकी लोग अभिषेक त्रिवेदी, अमेय सोनखासकर, स्नेहल कश्यप, you guys need to give an answer. स्नेहल कश्यप का तो आ गया था, नहीं आया अभी. You guys need to give the answer. हाँ, स्नेहल कश्यप का अभी आया. आदित्य त्रिवेदी, अमेय सोनखासकर, Jasmine. These people need to answer. So can we do a Kahoot today? आज नहीं करेंगे यार. सी Kahoot ना ऑनलाइन में मजा नहीं आता. दिस इज माय एक्सपीरियंस. बिकॉज मैं यहाँ से दिखाऊंगा, तुम अपने में करोगे, फिर 3-4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बाकी लोग का पता नहीं होगा. कुछ लाइक दैट. देखते हैं. I'll figure out a method with which we can do this properly. Acha, I want to bounce an idea off you guys. So once you're done with this question, come on video and then I'll discuss with you. What happened, Abhishek Trivedi, Amay Sunkaskar? What's your answer? Sir, I'm not getting answer right. तो अभी अच्छा कैसे किया ये बताओ मुझे. शुरुआत में क्या किया? What did you do first? Sir, first I did like 1x is equals to p. 1x. 1 upon x is 1 upon x. Okay. And then 1 upon y is equals to q. Okay. फिर क्या हुआ? Then sir, I did 2p plus 3q हाँ. is equals to 13. हाँ. फिर Then sir, wait. बताओ ना भाई. फिर क्या करोगे? फिर नीचे इधर देखो, कम here. अभिषेक त्रिवेदी. Yes sir. यहाँ 5, ये 5p हो जाएगा, माइनस 4q हो जाएगा, क्योंकि 4 into 1 by y है. 4q is equals to -2 है ना. Now take your pick. किसको एलिमिनेट Yes. कर, बोलो किसको एलिमिनेट करें? टेल मी. हाँ. Then 3p. नहीं एलिमिनेट किसको करना है ये तो बताओ.
Q. Q को एलिमिनेट करें, ठीक है। अगर Q को एलिमिनेट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 4. और इसको 3. ऑलराइट, ओके। सो इससे हो गया 8p plus 12q is equals to 4 3 जा, बोलो कहाँ हो भाई अभिषेक त्रिवेदी? इसको देखते रहो ना। 3 5 जा 15p माइनस 3 4 जा 12q इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो -6 है ना। इस केस में दोनों प्लस माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। 15 plus 8 is 23p plus 0 is equals to, ये कितना हो गया? 52 minus 6 is 46 है ना। Yes, P sir, I put it minus. तो इसलिए इशू हो गया ना। इसको हमको एलिमिनेट करने के लिए ऐसा चाहिए ना। अगर माइनस लेना होता तो फिर इसको -4 से मल्टीप्लाई करते। एनीवे नाउ यू गॉट इट। तो हो गया p is equal Yes, sir. to 2, p मतलब 1/x is equals to 2, मतलब x is equals to 1/2, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। डन, ओके। अब लेवल 1 तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो कहाँ गया मेरा वीडियो? ये है, ऑलराइट। सो वर्कबुक, एवरीबॉडी कम ऑन वीडियो। So now the homework for you today, those who are not in NTSC group, they should finish level 1 of linear equations in two variables and polynomials का। I think तुम्हें पहले भी होमवर्क दिया था, अगर उसको किया तो करो, आगे का लेवल करो, नहीं किया तो लेवल 1 से शुरू करो। और उसके बाद जितना आज बनता है कल बनता है उसको खत्म करो। इनफैक्ट अब तो सैटरडे संडे भी है, तो जितना लाइट का और इसका दोनों का खत्म कर सकते हो जितना उतना करो। अभी मैं स्पेसिफिक होमवर्क तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, बट ये बाद में जब 2-3 हफ्ते के बाद हम स्पेसिफिक होमवर्क चालू करेंगे और ये तुमने अभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो तुमको बाद में आसानी होगी, तब और क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। You can just take the picture of this time and send it. Those people who are on NTSC, they should do these 2 chapters from NTSC book also, McGraw-Hill. And once you're done with McGraw-Hill, you can pick up the other book, the one that I sent. All right. Okay. Now I have a brain to pick here. So I'm going to tell you a feature that we're bringing in Flipper. Flipper is that app that I was telling you about. Now you tell me if you like that particular tell me if you like that particular feature. So basically what happens is ये तुम्हें पूरे चैप्टर के लिए टॉपिक में प्रिपेयर करता है, ठीक है। सो एक टॉपिक अच्छा हो गया, दूसरा अभी जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो अगर, तो ये तुमको पहले पोटेंशियल में प्रिपेयर करेगा। उसके बाद विल टेल यू कि अच्छा अब तुम अच्छे हो गए हो पोटेंशियल में, सो यू कैन चैलेंज अ फ्रेंड ऑफ योर्स। तो चैलेंज होएगा 5 मिनट्स का, कहूट के जैसा। तो चैलेंज का मतलब ये होगा कि तुम्हारा फ्रेंड भी वही क्वेश्चन उस टाइम पे करेगा, दोनों के सामने सेम क्वेश्चन आएगा और तुम सॉल्व करोगे। और जो जीतता है तो हाँ, उसके लिए चैलेंज करने के लिए तुमको अपने पॉइंट्स और उसको अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। तो यू अर्न द पॉइंट्स, मैंने दिखाया था पिछले साल, यू अर्न द पॉइंट्स यूजिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट यू डू, से तुमको पॉइंट्स मिलते हैं। तो सपोज तुम 100 पॉइंट्स देते हो, उधर से भी वो 100 पॉइंट देता है, उसके बाद 200 पॉइंट्स का एक पॉट बनता है। और उसके बाद जो जीतता है उस ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, उसको 200 पॉइंट्स मिल जाएगा। Similarly, you can challenge for 5 times in bronze, and if you win 5 times, you can challenge more times also. But if you win 5 times in the day, 5 minutes के 5 times अगर तुम जीतते हो, तो you will graduate it to silver level. So now anybody in the country who is playing at silver level on that particular topic, they'll compete with you at silver level. And if you win 3 games of silver level, which are 10 minutes, then the toppers of the country of that particular topic on that particular day will fight against each other for gold medal. And gold medal ka jo test hai, those will be difficult questions for 15 minutes, and that is for around 2000 points. So you put your 2000 points, that person will put 2000 points, and whoever wins takes home 4000 points. And for that particular day, your whole app becomes golden. And then the next day again, you can start with your own other topic, whichever topic you see. So how is this? Is this exciting? So, Huh?
That's good. Yes, sir. Yes, sir. So this whole challenge, sir. and then I realized this, that if you are a, if you become a pro gamer, for example, you get very good at a particular topic, and you don't have to be best at every topic, right? To become a gold winner, and then it comes in your profile that you are 4 times gold winner, you're 10 times gold winner. So in your profile page, it'll come like that. So you don't have to be best at every topic. You can be best at some topics and just win gold on that, which means that in the country you are the best in that particular topic for that particular day, right? So, Uh, so this golden page will be for that day itself, right? yeah, for one day. Not for the next day. Because next other people will play that particular game, right? Okay. Now, another thing that I was saying was, क्या बोला था? I भूल गया मैं. क्या था? हाँ. So when we were designing this particular functionality 4-5 months ago, we realized this, that we can stream people when they play it. So for example, you become a pro solver, you become a pro problem solver, and there are difficult questions. There's a question which will take 15 minutes to solve, and it's a very difficult question. And when that student is solving, he can create his own channel where he just keeps solving that question in a particular way, which is interesting, the way people do gaming streaming, right? So now you can be an intellectual streamer. So because you are great at, say, chemistry, at a particular organic chemistry, and when you're solving organic chemistry questions, other people can just keep watching you and keep learning from it. And more followers you have, you may actually start to earn from that followers, the way gaming streamers do. So out of this whole thing that I told you, which is an exciting feature for you? You can respond to me on chat. So मैंने बड़े सारे फीचर बताया ना कि ब्रॉन्ज पॉइंट्स तुमको पॉट में डालने पड़ेंगे, 500 पॉइंट डाला तो जो विनर होगा वो 1000 लेके जा सकते हैं. उसके बाद ब्रॉन्ज, सिल्वर, फिर गोल्ड आएगा. वहां पे सिर्फ तुम अपने स्कूल के बच्चों के साथ नहीं compete करोगे सिल्वर और गोल्ड में. Anybody in the country, not just country, anybody in the world who's playing at that particular point of time, you will compete against you. For example, you're playing PUBG. So rank 1 in PUBG doesn't mean you're the best in PUBG overall. Na? It means only at that time who were you playing against. So it's like that. And if there are not enough people, then the bots will play against you. And then this one, the functionality where the gold winner will get it golden this thing for a day, and also will get tagged in your profile that you are 5 times gold winner, 10 times gold winner, right? And then the functionality where you can stream your playing if you wish to, in your page, a personal page where you can stream, where you can keep streaming whenever you keep solving questions. For example, right now I'm giving you a question, the way you solve might be very interesting, the way your brain works might be very interesting, and people might want to listen to that, and you may keep cracking jokes also, who knows, while solving that. So people may just follow you to just see. So which of these functionalities do you like? You can write it on the chat. The challenging one, I love that. Golden I will get. Golden main page. Putting of points together. It reminds me of pool. Pool, right. It's like a pool only. Earning money and the live streaming, okay. Earning most points is very interesting, okay. All of them, okay. Ligo, let me know so that then accordingly we'll keep those features and not keep those features accordingly. Golden page and earning. So this will be for all now. This will be access for all the people, not particularly Y Academy students. No? Yeah. Only for Y Academy students, you'll have full access to the app, but anybody can join the app. They'll have restrictions. Okay. And anybody can buy the app separately also. But for Y Academy people, you will have unlimited full access. And this feature will not be there right now. It will be there in the future, maybe after 6 months. But right now, it will be for you to get better. Challenging your friends. The best part is live streaming. And good. But so like when will this app be released? This app will be given to you maybe in a month's time. 1 महीने में हम तुमको ये app दे देंगे. अभी भी है मेरे app, मेरे इस पे भी होगा. It's right now. It's only for iOS. But within 15 days, we can make it for Android also. Let me see if मेरे में है इधर कि नहीं है.
अभी इस वाले फोन पे नहीं है, दूसरे वाले फोन पे होगा. नेक्स्ट टाइम मे बी नेक्स्ट दिस थिंग आई विल शो यू गाइस. ठीक है, चलो. सो गो अहेड, डू योर वर्क. लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर लो. ठीक है, चलो. ऑल राइट, टेक केयर पीपल. बाय बाय. Thank you. Thank Thank you, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir.